method of voltage control of the transmission system. And if you remember, we described the excitation system, then we described the shunt capacitor connection, then we described the static VR compensation, then we described the STATCOM. So these were the few methods, including this shunt and series compensation. These are the few methods of controlling the voltage of the power system network. In addition to this, the few other methods which we will be describing here is the first one is the tape changing transformer. Tape changing transformer means although the power transformers are highly rated transformers and very heavy current flowing through the transformer, but this is a method of controlling the voltage. As we know, very principle is very simple. That if the number of turns are N1, say for example, number of turns in the beginning, when it is N1, for example, say it is 11 kV, and on another side, voltage is 220 kV, and here if you take the tapping from here, it is 220 kV. Suppose because of some reason voltage goes down, and if you increase the number of turns, N1 by N2, then V1 by V2. If you increase the N2, then V2 will increase. Is it clear or not? If you decrease the N2, means number of turns on the secondary side, if you change, then voltage will change. But whether it is so simple that you can change the voltage, suppose this transformer is of, it can be vary. Suppose for example it is 100 kVA transformer, or it can be more than that. So it is 100 kVA transformer, and out of 100 kVA, if 10 kV voltage is there, 10 kilovolt is there. So what is the current? Or transformer is not 100. In the transmission system, transformer may be the mega MVA. So for example, it is a 1 or 10 MVA system, 10 MVA transformer, and the voltage is 10 kV. So what is the current? 10 MVA and 10 kV. What is the current? 10 kV is the voltage, or 10 MVA is the power. Voltage into current. So what is the current? 1000 ampere. So we cannot. Now question is, when we change the turns from here to here, with the 1000 ampere of current flowing into this, 1000 ampere current जा रहा है, क्या आप उसके टर्न्स उस समय टर्न्स चेंज करना है? तो टर्न्स चेंज करने का क्या मतलब है? Initially it is connected here, now you will connect next. So you have to break the system. 100 ampere current को आपने ब्रेक किया, is it possible? 100 ampere current is flowing और आप उसको ब्रेक करके दूसरी जगह लगा सकते हैं? It is not possible. So that's why this is first of all, it is a no load tape changing. First of all is the no load. Means when load is not connected, उस समय आप टेप चेंज कर सकते हैं. ये स्थिति कब होती है कि आपको पता है कि जब ओवरलोडिंग होगी, पहले से ही पता है कि ओवरलोडिंग होगी, गर्मियां हैं या और देयर कैन बी अनदर रीजन्स आल्सो. तो आपको पहले से ही आपने टर्न्स रेशियो उसका ट्रांसफार्मर का एंड साइड का ही चेंज किया हुआ है कि आपका ओवरलोडिंग होगी तो वोल्टेज आप पहले से बढ़ा कर रखते हैं. बट ड्यूरिंग लोड यू कैन नॉट चेंज. सो इट इज ए ऑफ लोड चेंजिंग ट्रांसफार्मर. Now whether when load is there, then what is the procedure of the changing the tape? That is the tape changing under load transform, load condition. जब लोड लगा हुआ है उस समय टेप चेंजिंग कैसे करेंगे? ये तो पता लग गया कि टेप चेंज करने से, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से क्या होता है? वोल्टेज चेंज हो जाता है. ये तो हमने बेसिक ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है. लेकिन बिकॉज ऑफ द हैवी लोड वी कैन नॉट चेंज द करंट. तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया है. इट इज ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर. इसमें क्या करते हैं? मेन चीज़ है कि कैसा है हमारा, इट इज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग इज हैविंग टू पार्ट. मतलब अगर सपोज करिए ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है, और सपोज 100 एम्पियर करंट, जैसे हमने पहले देखा 100 एम्पियर करंट जा रहा है. सो 100 एम्पियर करंट इज गोइंग टू द सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज हैविंग टू पार्ट. तो आउट ऑफ 100 50 एम्पियर इधर से जाएगा, 50 एम्पियर इधर से जाएगा. फिर 50 एम्पियर इधर से, 50 एम्पियर इधर से, तो टोटल इज 100 एम्पियर. यहाँ तक किसी को डाउट है? Total 100 ampere current is flowing, 50 ampere here and 50 ampere here. Now, and suppose we want to change the tape. This point, one A is connected here, one B is connected here, दोनों, और 50-50 जा रहा है. अब हम क्या करेंगे? एक
सपोज वी वांट टू चेंज फ्रॉम 1 से 1 से 2 पे जाना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ओवरलोडिंग की वजह से वोल्टेज डाउन जा रहा है, वोल्टेज डाउन जा रहा है तो हम क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना चाहते हैं। सपोज नंबर ऑफ टर्न 1 से 2 स्टेप पर जाना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे उसमें क्या था, आपको 1 से 2 में जाने का ओपन सर्किट हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपने दो है ना, इसमें से दो में से एक को आपने ओपन किया, तो एक को ओपन किया, जैसे आपने एक को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पूरा 100 एम्पियर स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि 100 एम्पियर दे रहे जाने का पास इधर से 100 एम्पियर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट वेदर दिस पॉइंट कैन टेक 100 एम्पियर और नॉट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, इसका डिजाइन ऐसा है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट कैन टेक 100 एम्पियर। इसकी कैपेसिटी है, मतलब एक सेकंड के लिए ले सकता है, लेकिन आप 100 एम्पियर आपको थ्रू द डे फ्लो करें, थ्रू द डे इट विल नॉट बी अलाउड टू फ्लो टू दैट, लेकिन एक सेकंड के लिए ले सकता है। तो जो आपने ओपन किया इसमें 100 एम्पियर फ्लो जाएगा। उसके बाद इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इसको ओपन किया, फिर इसमें से 100 एम्पियर फ्लो करना शुरू करेगा थोड़ी देर के बाद, फिर इसको ओपन कर दिया, फिर कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप यू कैन चेंज। इट इज क्लियर और नॉट? दिस इज द मेथड ऑफ ऑन लोड वोल्टेज चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इससे हमने टर्न्स रेशियो चेंज करके आउटपुट वोल्टेज चेंज करते हैं। देयर इज अनदर मेथड या ऑटो ट्रांसफार्मर बेस्ड मेथड। ये आपका ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इसमें सेकेंडरी साइड में ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या करते हैं, जब आपका ये इससे कनेक्टेड है, ये आपका नॉर्मल वे में, ये सपोज करिए इतना टर्न्स आप यूज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली इसमें सप्लाई किया रहा है। तो जब आप इसकी बजाय आप इस पर जाना चाहते हो, पहले ये वाला पॉइंट इधर है, और जब आप इसका कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा, जब आप इससे पूरा कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, इसको ओपन करके इसको कनेक्ट करेंगे, पूरा रजिस्टर ये पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस पिक्चर में आ जाएगी। तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा ये रिएक्टेंस पिक्चर में आएगा। धीमे धीमे आपने इसको फिर उस पर ले जाएंगे, नॉर्मल उस पर ले जाएंगे। तो इस तरह आपका स्टार्टिंग में जैसे ही आपने टर्न चेंज किया, टर्न चेंज करना चाहेंगे तो ये वोल्टेज है वो उसमें लगेगा, तो इसको वोल्टेज लगेगा, फिर आप इसको चेंज करके चेंज करेंगे। ऐसे ही हर स्टेप में आप ऐसे मूव करेंगे। सो इट इज another method. Now concept of tape changing transformer, that we will discuss the concept is this theory or derivation we will describe the later. But first of all what we are going to describe is, इसको हम इस कंसेप्ट थ्योरी को थोड़ा लेट डिस्क्राइब करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड वोल्टेज ये रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड वोल्टेज सपोज करिए आपका दिस इज एट ए वन स्टेशन एंड दिस इज एट ए से 50 किलोमीटर अवे। ये आपका सब स्टेशन है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, सेंडिंग एंड ट्रांसफार्मर, रिसीविंग एंड ट्रांसफार्मर 50 किलोमीटर के बाद में दूसरा, और यहाँ ओवरलोडिंग हो रही है। तब प्लस रेशियो मतलब सेंडिंग एंड साइड पे ट्रांसफार्मर है, रिसीविंग एंड साइड पे ट्रांसफार्मर है, तो कौन सा ट्रांस रेशियो, इसका टेपिंग यहाँ भी कर सकते हैं, टेपिंग यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन टेपिंग करने की प्रॉब्लम होता क्या है, टेपिंग करने से क्या होगा, अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज आपने कहा कि भाई ओवरलोडिंग की वजह से वोल्टेज कम हो रहा था, तो आपने वोल्टेज बढ़ाया, 10% वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगी, सेम पावर के लिए करंट कम हो जाएगी। और अगर आपने वोल्टेज कम किया तो सेम पावर के लिए करंट इंक्रीज कर जाएगी। तो वोल्टेज नॉर्मल से ऊपर जाने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब ट्रांसफार्मर सपोज करिए ट्रांसफार्मर डिजाइन है 220 kV के लिए, और 220 kV की जगह आप कह रहे हो हमें ओवरलोडिंग की वजह से आपको उसको बढ़ाना पड़ गया, 220 की जगह आपने कहा 280 पर रन करना है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, पावर उतनी है अगर तो प्रॉब्लम क्या आएगी, पावर उतना ही है। लेकिन आप कर रहे हो सेम ट्रांसफार्मर था, एक ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किया था 100 kV या 1 MVA के लिए ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया था, 1 MVA एंड 220 kV के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन अब हम उसे MVA तो उतना ही है लेकिन kV बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या लॉसेस नहीं, लॉसेस क्यों बढ़ जाएंगे, वोल्टेज बढ़ने से लॉसेस कम होते हैं, वोल्टेज जितना हाई वोल्टेज होगा लॉसेस कम होंगे,
कभी तो ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, 100 kV, 200 kV, 400 kV। वोल्टेज लेवल अगर बढ़ाएंगे तो लॉसेस नहीं बढ़ता, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे तो सेम पावर के लिए लॉसेस कम और हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते? इंसुलेशन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वी कैन नॉट, ट्रांसफार्मर है उसमें इंसुलेशन से, हर एक रन के बीच में इंसुलेशन है, फिर इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। और आपने सपोज ऐसा डिजाइन किया 220 kV की जगह आपने करो 300 kV वोल्टेज, तो क्या होगा? इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या कर रहा है? आपको एक कंडक्शन से दूसरे कंडक्शन के बीच में इंसुलेट कर रहा है। तो अगर इंसुलेशन अगर आपका मतलब ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे सपोज करिए 220 है तो आपको पतला सा इंसुलेटर चाहिए। और आप 4 फुट वैसे भी देखो एयर इंसुलेशन भी मान लें 220 kV, अगर आपका 220 वोल्ट है तो आप इतने पास में भी जाओ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 220 वोल्ट की जगह 220 kV है तो 1 मीटर से ही आपको खींच लेगा, क्योंकि इंसुलेशन उसमें ज़्यादा चाहिए। तो जितना वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो अब हमने टेप चेंजिंग तो कर रहे हैं, तो इंसुलेशन हमें, इसका मतलब इंसुलेशन तो बढ़ाया नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो भी नॉर्मल इंसुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है 10% ज़्यादा के लिए भी वो काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमें वोल्टेज कम करना पड़े, ये तो वोल्टेज बढ़ाने की बात हो गई। अब वोल्टेज कम करना पड़े किसी कारण से, मान लो ओवरलोडिंग हो रही, वोल्टेज कम करना पड़े तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? वोल्टेज उतना ही है लेकिन करंट है, उसको लॉसेस की प्रॉब्लम आ रही है। और उसके अलावा लॉसेस के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम आएगी करंट से। लॉसेस तो है ही, उसके अलावा क्या होगा? सेम रेजिस्टेंस, मतलब जैसे ये कंडक्टर का वायर है और इसमें अगर करंट बढ़ा दें तो करंट इसका लॉसेस बढ़ गया। लेकिन उसके अलावा इसमें पहले सपोज 100 एम्पियर जा रहा था, 110 एम्पियर जा रहा है, तो क्या होगा? हीटिंग लॉसेस की वजह से हीटिंग तो होगा ही, लेकिन हर एक की कैपेसिटी होती है कि भाई 4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर करंट फ्लो अलाउड है, उससे ज़्यादा करंट उसमें नहीं फ्लो कर सकते। तो करंट फ्लो अलाउड, करंट रेटिंग की लिमिटेशन है। हीटिंग होगा, हीटिंग के अलावा उसमें एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे आपको पतला सा तार है और उसमें आपने 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर करंट डाल दो, तो लॉसेस के अलावा और क्या प्रॉब्लम होगी? बर्नआउट होगी। हालांकि तो ये मान के चलते हैं 10% अगर एक्स्ट्रा करंट चली जाए तो बर्नआउट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 10 टर्न्स रेशियो टेप चेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है 50% का, टेप चेंजिंग 10% के रेंज में कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें टेप चेंजिंग करना पड़े सेकेंडरी और प्राइमरी, तो देखो अगर मान लो वोल्टेज बढ़ाना है तो यहाँ ये कम करने से वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर इस साइड का, अगर हमने इस साइड का टर्न्स कम करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा। और वोल्टेज कैसे बढ़ सकता है? यहाँ कैसे बढ़ सकता है? यहाँ का टर्न्स बढ़ा दें तो अभी यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ कम करेंगे या यहाँ बढ़ाएंगे? हैं? ये बढ़ाने से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो ये क्यों करोगे? ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज दोनों काम करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हमें पहले 10% चेंज करना है तो 5% ये बढ़ा दो, 5% ये कम कर दो, तो उससे क्या होगा? ये बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन का प्रॉब्लम आएगा, वो 5% हैंडल कर लेगा, और ये करंट रेटिंग बर्नआउट का जो प्रॉब्लम वो हैंडल कर लेगा। 5% का इफेक्ट पड़ा। अगर एक ही बढ़ाते तो पूरा उसका फुल इफेक्ट इंसुलेशन को 10% करना पड़ता। समझ में आ गया? मतलब दोनों ट्रांसफार्मर पर हम ऐसे करते हैं, जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये कम करेंगे। मतलब टर्न्स रेशियो इसमें अगर T1 है, टर्न्स रेशियो T1 है, इसमें T2 है, T1 × T2 = 1। एक का 0.9 तो एक का 1.1, मतलब हमने कम किया 0.9, दूसरे का बढ़ाया 1.1, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो गया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मतलब हम इस तरह टेप चेंजिंग करते हैं कि उनका टर्न्स रेशियो T1 × T2 should be equal to क्या? 1। ठीक है, तो ये हो गया। ये फॉर्मूला वगैरह बाद में समझाएंगे। फिलहाल another method of the
वोल्टेज कंट्रोल इज द बूस्टर ट्रांसफार्मर। देखिए जैसे ये बूस्टर ट्रांसफार्मर है, दिस इज बूस्टर ट्रांसफार्मर, ये आपका मेन ट्रांसफार्मर। सपोज ये फीडर आपका सोनीपत फाजलपुर रही है, तो फाजलपुर से फीडर जाता है। फीडर का मतलब फीडर और ट्रांसमिशन लाइन में फर्क पता होगा, या बस में फीडर तो सीधा जाएगा, वहाँ से आपका फाजलपुर से आकर एक लाइन आएगी यूनिवर्सिटी में सीधे, उसके बीच में नहीं आप टेपिंग करेंगे। अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन द टोटल लोड ऑफ द यूनिवर्सिटी फीडर में जो भी लॉसेस होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये फीडर है, यहाँ की वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो एक ट्रांसफार्मर आपका सपोज करिए डिपेंडिंग अपॉन फीडर किस टाइप का है, फाजलपुर से आ रहा है 33 kV, पहले ही अपना यूनिवर्सिटी का 33 kV का लाइन आ रही थी। अब उसके बाहर यूनिवर्सिटी की वो क्या है, कितनी है, 130 कितना बता ना, यूनिवर्सिटी के बाहर जो सब स्टेशन है वो कितने kV की लाइन आ रही है, गेट नंबर 3 से बाहर है 132 है 132 132 तो 110, चलो 132 kV की लाइन आ रही है सपोज। तो मतलब ये तो आपका तो एक ट्रांसफार्मर आपका फाजलपुर पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया जो सब स्टेशन है, ये हो गया। सपोज करिए ये आपका 132 का, और ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। तो अब एक तो ये था कि आप यहाँ से कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, जैसा भी बताया था, इसको बढ़ा के वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएगा, या इसको कम करने से बढ़ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एज अ फीडर सब स्टेशन, ये सब स्टेशन का देखिए। अब यहाँ अगर हमने टर्न्स रेशियो यहाँ कम किया, ये यहाँ से ये, तो प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स N1/N2, यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, इसमें N1 में N2 इसके अकॉर्डिंगली यहाँ वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली यहाँ ऐसा करंट फ्लो करेगी। ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, इसका साइज बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू मेन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट है, लोड तो यहाँ कनेक्ट है, लोड तो इस पर कनेक्टेड है। ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, इसका साइज इसके कंपेरिजन में बहुत कम होगा। अब इसमें जो करंट हो रही है, इस करंट की वजह से यहाँ EMF प्रोड्यूस होगा, मतलब ये क्या होगा, दिस इज द बूस्टर ट्रांसफार्मर, उसमें ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो करंट होगा उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यहाँ वोल्टेज होगा। ये वोल्टेज सीरीज ऑफ द लाइन लग गया, मतलब फीडर आ रहा था उसी की सीरीज में वोल्टेज लग गया, तो सीरीज में वोल्टेज लग गया तो वोल्टेज अप हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बूस्टर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये प्राइमर ये था बूस्टर ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज के लिए था। ऐसे ही 3 फेज के लिए बना दिया कि हर एक फेज में बूस्टर ट्रांसफार्मर A फेज, B फेज, C फेज, हर एक में इंडिविजुअल लगा दिया, ये इसका फेज है। Another method is the 3-phase induction regulator. 3-phase induction regulator. पहले तो इंडक्शन रेगुलेटर क्या होता है? इंडक्शन रेगुलेटर इज जस्ट लाइक ए इंडक्शन मोटर। इंडक्शन रेगुलेटर इज जस्ट लाइक ए इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर कौन सा? स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पता है क्या होता है? हाँ भाई, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बताओगे क्या होता है? आप ये इसी को इसका क्या नाम है लास्ट? हाँ बताओ, व्हाट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर? जो मशीन्स में आपने पढ़ा, मशीन 2 में पढ़ा होगा, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे है। What is the difference between slip ring induction motor and squirrel cage induction motor? क्या? क्या difference? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें ये इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट होता है, फिर फेड करता है। और स्लिप रिंग में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट नहीं होता, उसमें 3 फेज सप्लाई जाता है। जैसे 3 फेज सप्लाई प्राइमरी में जा रहा है, वैसे ही 3 फेज सप्लाई सेकेंडरी में जाता है।
और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज सप्लाई तो जा रहा है, लेकिन सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो उसका अमाउंट कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। सेकेंडरी साइड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, उसमें सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है, फॉर्मूला पता है, पता है फॉर्मूला। सेकेंडरी साइड में इंडक्शन मोटर के सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है? नहीं, वो तो सिंक्रोनस मोटर का जनरेटर, इंडक्शन मोटर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एस इंटू ई टू नहीं, एस ई टू स्लिप के अकॉर्डिंगली अगर उसका वोल्टेज ई टू है तो उसमें एस टाइम एस का स्लिप, अगर स्लिप आपकी 0.1 है तो वोल्टेज 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट में 0.1 मतलब 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी साइड में उतना वोल्टेज नहीं होता जैसा 220 वोल्ट इंडक्शन मोटर आपने 3 फेज लगाओ, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मेजर करो जब घूम रहा है तो वोल्टेज एस इंटू ई टू होगा, आपने मशीन में पढ़ा भी होगा फॉर्मूला। ऐसे फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होता है, ऐसी वोल्टेज भी एस इंटू एफ होता है। तो वो वोल्टेज जो हमारा सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज हुआ वो हम ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट करते हैं। जैसे देखो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज हुआ वो यहाँ यह प्रोड्यूस हुआ और इसकी सीरीज में हमने इंजेक्ट कर दिया। तो अगर ये 100 था और ये 2 वोल्ट था तो 102 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ना सिर्फ ये 100 और 202 एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसका 100 वोल्ट और हम इसके साथ ऐड करें, इसका 100 वोल्ट इसके साथ ऐड करें, इसका 100 वोल्ट इसके साथ ऐड करें, तो क्या होगा, इसको फेज डिफरेंस, ये जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज है, इससे फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री, इसका वोल्टेज इससे फेज 120 डिग्री होगा। मतलब हम वोल्टेज ऐसे भी इंजेक्ट कर सकते हैं फेज ए और इसमें 120 डिग्री, तो नेट वोल्टेज ही होगा। मतलब अब हम इसमें से कुछ भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, हम ये चेंज करके हमारा जो ये वोल्टेज है मतलब फेज चेंज भी कर, नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड बट वी कैन चेंज द फेज आल्सो इन द आउटपुट, ठीक है। अब तो जो बताया पूछ सकते हो, पूछना। अब ये जो सब सही फॉर्मूला है तो कितना T1 कितना हो T2 क्या उसका रिलेशन, ये डेरिवेशन है, समझेंगे आपने पढ़ लोगे, ये बेसिक कंसेप्ट हमने समझा दिया। और इसमें समझाऊंगा ना T1 T2, तो आपका दिमाग अभी मुझे लग रहा है ना सैचुरेशन